So, welcome everyone, and today we are going to start the PSIR 300 series. How good are you? How good are you at PSIR? If I ask this, it's like you said, good होते तो यहाँ होते. We would have been writing answers on our own. No worries. So this session is for two kinds of candidates: those who are going for mains this year, and even if you are not going for mains, I would suggest you that prepare as you are going for mains this year. And those who are not going this year. So for this session, this particular series is about coverage, covering the syllabus in the minimum possible time. And if you could see the schedule, that minimum possible time is that we have almost uh, 2 months in hand. So in these next 2 months, what we would be doing is we would be covering all the questions. We would be covering around 300 questions specifically. So this is the schedule, not this one. So if you have gone through the schedule, what we would be doing is we would be covering these questions, whatever is given on the topic to be covered on at that day. Plus we have the number of questions aligned to every topic. हर topic के साथ अलग-अलग questions aligned हैं. तो यहाँ पे idea would be that once we'll start the class, जैसे जैसे हम class per हर day start करेंगे, first I would be giving you 2 minutes. I'll be reading the question. I'll be giving you 2 minutes. In those 2 minutes, you have to scribble down your thoughts on a paper. You have the extra sheets over here. You can take the extra sheets from outside. तो आप वो थॉट्स स्क्रिबल डाउन करेंगे. थॉट्स एज एन लेट अस से दिस क्वेश्चन कम्स, सो व्हाट इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू राइट, what kind of conclusion I'm going to write, what exactly the content I'm going to write, what scholars are required over here. So this would be quick recap of your memory. Now you just have to recollect the things as soon as possible in those 2 minutes. Once we are done with those 2 minutes, then I'll be discussing the full-fledged answer, that what has to be done, what kind of things can be written. If the question is of contemporary relevance, what kind of contemporary solutions we have to give, how we have to relate it with the modern world. Because if you'll see the previous year paper, that means 2024, you must have come across the paper, you must have seen that the questions were highly contemporary and analytical in nature. So let us say in Hobbes, we usually consider that they would be asking a very static question. वो स्टेट ऑफ नेचर पूछ लेंगे. व्हाट इफ उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस से पूछ लिया कि कैन यू रिलेट द स्टेट ऑफ नेचर विद द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, या हाउ कैन यू जस्टिफाई द हॉब्स आइडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अगर उन्होंने पूछ लिया कि ठीक है, व्हाट जस्टिस इज, द प्लेटोनिक जस्टिस विज अ द मॉडर्न जस्टिस, एरिस्टोटेलियन जस्टिस, तो वो कई बार कंपेयर करने को पूछ सकते हैं, मतलब वहां पे दिखता भी है द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस. बट व्हाट अबाउट द जस्टिस ऑफ द प्लेटोनिक जस्टिस विज अ द मॉडर्न जस्टिस. तो इस तरह के क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना. यूजुअली हम जब डब्ल्यूपीटी पढ़ते हैं तो हम बहुत स्टैटिक क्वेश्चन करके जाते हैं कि इसमें से जस्टिस आएगा, और अगर हॉब्स होगा तो स्टेट ऑफ नेचर ही होगा. क्वेश्चन आए भी ऐसे हुए हैं. बट लेट अस प्रिपेयर फॉर बिग एनालिटिकल एंड टफर क्वेश्चन, सो दैट इन केस अगर ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं तो विन विन सिचुएशन है, 280 290 नंबर. और नहीं आते हैं तो स्टिल वी आर एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर टेम्पो एंड वी आर एबल टू राइट दोस आंसर्स. तो हैविंग सेड दैट, ये हमारा शेड्यूल रहेगा. शेड्यूल आपको प्रिंट आउट में भी अवेलेबल है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है. तो इस तरह से वी वुड बी गोइंग. हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलाइंड है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलते रहेंगे. नाउ अनदर थिंग विच स्टूडेंट्स यूजुअली फेस इज विद रिगार्ड टू द कीवर्ड्स. जैसे पहली चीज हम कीवर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं. आई गेस दैट वुड बी अ बेटर वे. अच्छा, मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये जो टॉपिक आज दिया गया है इसका रिवीजन आप करके आए हो. करके आए हो? नहीं करके आए? ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन भी कर लेंगे आज, तो कोई बात नहीं है. यही है, लेट अस रिकलेक्ट. द टॉपिक इज, द कोर्स इज PSIR 300, and today we would be covering Plato, Aristotle, then we have Machiavelli and Hobbes. ठीक है. Now first thing is about the keywords. Usually students have this notion that keywords doesn't matter in the optional paper. ऐसा होता है, लगता है ऐसा कि keywords doesn't matter in the optional paper. Matters. ठीक है. बट कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सारे क्वेश्चंस तो एक जैसे लगते हैं, फिर कीवर्ड का क्या करना है.
ऑप्शनल में तो जीएस में तो फिर भी कीवर्ड्स हेल्प्स अस इन सेलिंग थ्रू दी थिंग्स। ऑप्शनल में कैसे यूज करें कीवर्ड को? क्या ऑप्शनल में भी कीवर्ड नेसेसरी है? लेट अस से ऑप्शनल में द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन, द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन। अब नाउ देयर इज अ नोशन इन द मार्केट कि 70% क्रिटिसाइज करके आ जाना, ऐसा होता है ना, इतना परसेंट क्रिटिसाइज कर देना। तो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकली एग्जामिन? लेट अस से इन हिंदी, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी बेल्ट, हिंदी में क्या मतलब होगा क्रिटिकली एग्जामिन का? आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचना नहीं करनी है ना, इन हिंदी इट्स क्रिटिसिज्म इज आलोचना, बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है उसका, वो जो यूपीएससी हमारे पेपर का कर देती है एट लास्ट। So this is where critical evaluation. Now let us see that when we talk about the concept of critical evaluation, अगर हम keywords पे जाएं, अच्छा keywords हम क्या करेंगे, कीवर्ड जो है हम एक साथ, आज कुछ नहीं वर्क करेगा, कीवर्ड्स हम क्या करेंगे, विद एवरी न्यू क्लास विल ट्राई टू कम अप विद न्यू कीवर्ड्स। तो क्रिटिकली एग्जामिन की अगर हम बात करते हैं, सो लेट अस से एक क्वेश्चन उठाते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, द टर्म ओवर हियर इज examination. Hobbes state of nature. How are you going to examine Hobbes state of nature in a critical manner? Let us say this is the question. Anyone? Initially, we give an introduction and then we give the context that in what situations he's explaining the idea of state of nature. Then what was the situation of Puritan revolution? Okay. Because of which there was no security of right. And then he would come with a solution of constructing the idea of Leviathan, where it will be more absolute power state. And he being a scholar of positive law also considers the idea of enforcing it. And also there would be no liberty in this. But then when he gives a solution, he would be compared with John Locke, where he would be coming up with the delegated powers and not absolute powers. Okay. And he would also be criticized by the pluralist theory of sovereignty. And then C.B. Macpherson would criticize him, but Sabine would again defend. But we have 150 words. नहीं, ठीक है, ठीक है. But again this question, Hobbes state of nature कितने words में होगा? 150 words, 200, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Now let us say the question is Hobbes state of nature. ये हमें पता है Hobbes state of nature, और state of nature in general पूछा हुआ है, ब्रैकेट में Hobbes लिखा हुआ है. So first thing is you need to introduce the thinker. Critical examination, आप thinker को introduce करो. 150 words then, not more than 30 words then. In that scenario, मैं 150 को लेके चल रहे हैं, फिर इसी को will stretch it to 200, 250. Introduce the thinker. Then the thought. Why he gave, yeah, what is idea. Now critical examination. Critical examination means that his idea has some flaws and relevance. So first you need to tell the flaws in the idea. Then you need to tell the relevance of the idea. And then obviously with relevance, conclude. Sabine, ठीक है, child of his times. He was trying to portray what he has come across. He was the product of the civil war of that time. So his ideas were very much relevant to his times. ठीक है. Let us say अगर यहाँ पर in general state of nature है, Hobbes नहीं है, फिर let me, कुछ नहीं है यहाँ पे, just state of nature. Hobbes, Locke and Rousseau have to come together. Then you have to tell what is state of nature. क्योंकि पहले तो ये, क्योंकि पता ही नहीं ना हमें किसकी बात कर रहे हैं. They are only talking about state of nature. अब किसका state of nature? So then we have to start with state of nature. Then the development of the idea with 3 different scholars. Then each one had their own reasons to present their state of nature. And finally, in the modern world, we can also relate with them. What is happening in PSIR currently,
that students are not trying to relate the things in a contemporary manner. अब सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो तो कराता है, उसको लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी है. पॉलिटिकल साइंस हमें लगता है कि 15-16 सेंचुरी का थॉट है, बट द थॉट ऑल्सो हैज द मॉडर्न एप्लीकेशन. तो ट्राई टू डू दैट एप्लीकेशन एज वेल, कि ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर एज एन आइडिया, state of nature presented why, three different scholars have their three different viewpoints for giving the idea of state of nature, then each one of them had their own flaws and relevance, and then finally concluding it that despite of the viewpoint given by them, this state of nature can be still relevant in the modern world, in which we have seen that the human is still very selfish, very nasty, and it's trying to find its own way to the success. Okay, so मतलब डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन है. हाँ, since each thinkers have given their viewpoint on state of nature, then in the relevance area, we write the relevance according to each thinker in general. इन जनरल यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने तीनों थिंकर्स कॉल दिए हैं, तो इन जनरल यू कैन टॉक अबाउट दैट दिस कॉन्सेप्ट हैज स्टिल वेरी रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज स्टिल वेरी रेलेवेंट in resolving the modern day problems and helping the human to grow. क्योंकि तीनों का अलग स्टेट ऑफ नेचर है, एक का खराब है, एक का अच्छा है, एक का ठीक है ना, एक का बहुत अच्छा और एक का ठीक है. तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो का एकदम ठीक है. तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं दिस स्टेट ऑफ नेचर एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी मच रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, रिजॉल्विंग देम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू देम. इस तरह से यू कैन स्टार्ट विद दिस. क्लियर? नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन of the topic today, फिर I'll come to another. This question can then be criticism like state of nature doesn't exist. It is prior. नहीं, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये वी आर ट्राइंग टू लिंक विद द करंट वर्ल्ड. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ नेचर. तो उसमें आप एरिस्टोटल पे नहीं जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर. ये तो लेटर ऑन प्रूव हुआ ही ना, एक स्टेट ऑफ नेचर तो था ही. तो अब क्या होगा ना, वो अननेसेसरी दैट वुड बी डेविएटिंग फ्रॉम योर पाथ. आप अपने पाथ से डेविएट हो जाओगे और फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. लेटर से आपने एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट लिखा, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ नेचर एंड इट्स कंटेम्परेरी रिलेवेंस. वी आर नॉट हियर फॉर डिनाइल ऑफ स्टेट ऑफ नेचर कि देयर वाज नो स्टेट ऑफ नेचर. ठीक है, अगर क्वेश्चन इज ऑफ, चलो ठीक है, लेट अस टेक योर व्यू पॉइंट कि द क्वेश्चन इज डू यू रियली थिंक दैट स्टेट ऑफ नेचर हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन? इस तरह से थॉट प्रोसेस में, या डू यू रियली थिंक दैट देयर वाज अ स्टेट ऑफ नेचर प्रायर टू द मॉडर्न स्टेट सिस्टम? इफ दिस हैज बीन द क्वेश्चन, if this has been the demand of the question, over there you can tell no, there is an alternative viewpoint of Aristotle as well, who presents a different viewpoint of an organic state system. So that can be done. So look, यही होता है कि we have a lot of content. अब कौन सा कंटेंट नहीं रखना और कौन सा कंटेंट रखना है makes us or makes our answer presentable, and you can say as per UPSC that is मतलब आंसर जिसमें मार्क्स आ सकते हैं. क्लियर? Now let us take one question. There was a question in PYQ. Plato was the enemy of open society. Simple, straightforward question था. Or there has been a question. Plato emerged as a philosophical champion of the closed society and in the process laid down the groundwork for totalitarianism. अब ये दो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. Plato emerged as a philosophical champion of the closed society. First thing is, after reading the question, do you have the agreement with this point? आप अग्री करते हो इस बात से? ऐसा हुआ है? पॉपर ने तो कहा ऐसा हुआ है ना, एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी में तो वो कहता ही ऐसा हुआ है. हैज ही लेड द ग्राउंडवर्क ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म? उसके लिए आपके पास वो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास उसकी थ्योरीज होनी चाहिए कि हाँ उसने किया है. जस्टिफाइंग प्लेटोनिक वर्क और जस्टिफाइंग दिस आंसर्स रिक्वायर्स द व्यू पॉइंट्स. आपके पास उसके मतलब थ्योरीज होनी चाहिए टू राइट. यू हैव टू प्रेजेंट दोस थ्योरीज. जैसे प्लेटो इमर्ज एज अ फिलोसॉफिकल चैंपियन ऑफ द क्लोज सोसाइटी. अब इट्स अ 20 मार्कर, नॉट जस्ट कम्युनिज्म. फिर हमें सारी थ्योरीज देनी पड़ेंगी, है ना, ऑल इज थ्योरीज. तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले बताएंगे अबाउट क्या क्या लिखेंगे. चलो एक काम करते हैं, टेक 2 minutes, ट्राई टू फिगर आउट दी कीवर्ड्स. क्वेश्चन याद है? Just go through the question once again.
डन। क्या आया? द क्वेश्चन इज प्लेटो as enemy of open society. Plato as enemy of open society. Now the no keyword attached over here, simple straightforward statement to be discussed. So now we have a liberty to write it in the way we want to write, but again we would be binded by the डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. लिबर्टी है हमारे पास कीवर्ड नहीं होने की वजह से, बट अगेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द चीजों में सेम रहेगी, बिकॉज हमने क्या देखा है इन PSIR कई जगह पे दे आर नॉट गिविंग द कीवर्ड्स. तो फिर ऐसे केस में हम क्या करें? सो प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. सो फर्स्ट इज व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इंट्रोड्यूस प्लेटो, बिकॉज इट्स अ 20 मार्कर. एक यह तरीका है लिखने का, इंट्रोड्यूस प्लेटो. Or if you are aware of the fact that this particular sentence has been used by Popper, then you can also start with Popper and his work, क्योंकि तो famous है. Popper in his famous work, Enemies of the Open Society, has identified Plato as the biggest enemy of the open system. And while writing this, Popper has also identified that this particular thought process has given birth to totalitarianism. तो आपने क्वेश्चन की डिमांड को इंट्रोडक्शन में मीट किया. आपने बताया कि पॉपर के वर्क में ये चीज बहुत आइडेंटिफाई की गई है, या पॉपर का वर्क इस तरह से लिखा गया है जिसमें उसने प्लेटो को कहा है कि प्लेटो का मतलब पॉपर ने परसीव किया, यहां परसेप्शन है. आपको इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करना कि व्हाट पॉपर हैज सेड इज राइट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाइड इट इन द इंट्रोडक्शन ओनली. उसके लिए तो फिर पूरा पेपर है, मतलब पूरा आंसर है. यहां पे यू हैव टू टेल दैट इट्स अ परसेप्शन, that there is a perception about Plato that Plato is an enemy of the open society and Plato has laid down the foundations of totalitarian state. ये परसेप्शन ही तो माना गया. अब ये परसेप्शन कैसे प्रूव होगा? इसको प्रूव करने से पहले you need to talk about Platonic ideas. You need to talk about various theories of Plato which identifies that he has been a totalitarian. Now what theories justifies Plato? What theories indicates that Plato has been a totalitarian? His concept of philosopher king, taking away the liberty by implementing the specialization. Okay. Then next is communism of. At the same time, his education model has been very much closed system. Okay, so his this education was closed in nature. So these were his ideas. Now according to these ideas, justify whether he is totalitarian. Yes, to these very thought or to these very ideas. अगर आप देखेंगे these very ideas depict in the modern world that they have given birth to the concept of totalitarianism. कैसे आप करोगे? आप इसको हिटलर से भी लिंक कर सकते हो. हिटलर हैपेंड टू बी अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ प्लेटो, and he was very fond of Plato, Platonic thoughts. हिटलर के जो आइडियाज हैं, his concept of state run education in the system, his concept of rule of one person, okay, then his concept of contributing to the state or sacrificing for national interest have justified, yeah, these things justify, but at the end nevertheless at the end क्या होगा? प्लेटो के लिए एक इंसान है जो हमेशा खड़ा रहता है. Defense of Plato, he has justified that, yeah, Rousseau, Rousseau's concept, then Levinson's defense, Rousseau's defense on education, best treatise. इस तरह से we can wind it up. Fine. So the ideas can be right about Plato being reluctant to democracy. Yes, exactly. तो यहाँ कर सकते हैं हम that philosopher king से आ जाएगा ना. In his
मैग्नम ओपस रिपब्लिक, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया परसेप्शन को, क्योंकि इट्स अ 20 मार्कर, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट। अच्छा, अब यही 10 मार्कर आ जाए, फिर क्या परसेप्शन से करेंगे? फिर तो डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा, है ना। फिर सीधा लिख देना, पॉपर इन हिज फेमस वर्क हैज परसीव्ड हिम टू बी अ टोटलिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट, हिज थ्योरीज वर हाईली क्रिटिसाइज्ड, the theories Plato presented, why they were criticized. Nevertheless, whatever he has written was very much important for that Greek system, was important for that Greek system, and was important in the stability and sustainability of the Greek system, of the diminishing and decaying Greek system. इस तरह से 10 मार्कर मतलब दो पेजेस में वाइंड अप किया। ठीक है, जरूरी है कि इंट्रो में फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन आता है, देखो 10 मार्कर में आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन की थीम को पकड़ो और उसके डायरेक्शन के हिसाब से लिखो। 20 मार्कर में यू स्टिल हैव रूम टू राइट अ लॉट मेनी थिंग्स दैट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट ग्रीक सिस्टम वाज नॉट फंक्शनल, डिसफंक्शनल ग्रीक सिस्टम, एथेंस वाज अ डिकेइंग स्टेट इन अ डिलेपिडेटेड कंडीशन, तो वहां से आप कर सकते हो। लेकिन व्हेन द सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड इन 10 मार्कर, तो यू डोंट हैव मच स्कोप। तो आप ये पकड़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी 10 मार्कर के थ्रू समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा जंप अपॉन कर जाओ ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जस्टिफाई द थ्योरी, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट द थ्योरी, जस्टिफाई द थ्योरी, क्रिटिसाइज द थ्योरी, एंड देन डन। ठीक, क्रिटिसाइज द थ्योरी और जस्टिफाइड द थ्योरी, वो डिपेंड करेगा कि क्या वो थ्योरी का आज रेलेवेंस स्टैब्लिश कर सकते हो। अब लेट अस से द थ्योरी इज फासिज्म, अब उसमें क्या जस्टिफिकेशन देंगे, वो तो क्रिटिसिज्म करके खत्म करना पड़ेगा। So that would depend. So what we are going to do is that we have a structure in hand that about thinker, एक मेजर जो आप ले सकते हैं, about thinker, his ideas, criticism to his ideas, support thinker, and then while supporting conclude by saying it was very much essential for his time and that every thinker is a child of his time। सबाइन का एक स्टैटिक आ जाए, क्योंकि एक ही थिंकर पे क्वेश्चन होगा तो आप सबाइन को यूज कर सकते हो। सो क्रिटिसिज्म में यूज स्कॉलर्स, सपोर्टिंग यूसेज ऑफ स्कॉलर्स, फाइन। Now let us see a model answer. अब ये model answer is model because it has been written, produced in a very टाइम फ्री मैनर। तो आप इसको देख के नहीं सोचो कि हमें बहुत मॉडल आंसर टाइप लिखना है, बट एटलीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ओवर हियर इज दैट वी हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें मिस नहीं करने, अब इसके लिए हम मॉडल आंसर देखेंगे, ये हमारे आंसर्स में होने चाहिए, एंड दीज कीवर्ड्स मेक्स अवर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। बाकियों से क्या बेटर हम कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है वही प्लेटोनिक थॉट है, वही सब कुछ फिलॉसफी है। जैसे यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया 20 मार्कर है। अब 20 मार्कर में देयर कैन बी वन वे ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू कैन स्टार्ट अबाउट राइटिंग, यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग अबाउट प्लेटो, that he happened to be the father of the Western political philosophy, a very important person. His major ideas have been written in the magnum opus called the Republic. इस तरह से आप start कर सकते हो because you have 20 markers in hand. You have 20 marker question and 4 pages to write. अब 4 pages में खींचना भी है चीजों को. So first 50 words can be devoted. Around इतना 40 words से 50 words आप devote कर सकते हो writing about the geography and history of Plato, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में introduce किया। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा भी बता सकते हैं कि why Republic was written. Republic happened to be a dialogic work, ठीक है, highlighting the crisis of that time in which Plato wanted to ensure that his state Athens is better or becomes better as compared to the neighboring states like Sparta, ठीक है। तो dialogic form में लिखा गया है इसका ये work. While writing this work, he proposed certain theories now. अब now next would be कि there would be his ideas while writing this work, या in this work he has proposed several theories. अब वो थ्योरीज बताओ, अभी मत बताओ कि थ्योरीज जो हैं वो टोटलिटेरियन है, पहले थ्योरीज बताओ। थ्योरी नंबर 1 दैट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग बिकॉज दिस फिलोसोफर किंग। अब अच्छा, इसी थ्योरी में ना उसका सेटअप देते जाओ जिससे बाद में क्रिटिसाइज करना इजी हो जाएगा। थ्योरी बताया फिलोसोफर किंग, नाउ व्हाट वुड बी द प्रोपोजिशन ऑफ फिलोसोफर किंग, हाउ फिलोसोफर किंग इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि जब हम उसकी वर्किंग बता देंगे तभी हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे ना। इन द वर्किंग कम्स द क्रिटिसिज्म। सो फिलोसोफर किंग हैविंग नॉट बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय रीजन, knowledgeable person, enjoying unbridled power, ठीक है, and ultimately absolutist in nature, absolute sovereignty. From that, secondly, you can talk about his radical changes he wanted to have in form of communism,
in form of the property. So this is what he was trying to make. Third is he always ensured that individual should be just beneath the state. That state is individual writ large. So he's trying to portray a absolutist state with no individual freedom. So individual has to work as per the whims and fancies of the state. ये बात भी उसने justify कर दी. And then ultimately while writing such things, he became a champion of the closed society and a person who laid the foundation of the totalitarianism. यहां से आप पॉपर का criticism पूरा स्टार्ट कर सकते हो. Each idea and each criticism. या इन जनरल प्लेटो के लिए, इसलिए मैंने इसको येलो कर रखा है, ये 3 क्रिटिसिज्म सफाइज एवरीथिंग. आप उसके होलिज्म को, उसके एसेंशियलिज्म को और उसके हिस्टोरिसिज्म को आप बता दो दैट ही हैज कमिटेड अ गिल्ट ऑफ historicism. He has unnecessarily taken a holistic work where he has ensured that human should not be above society or the state, and at the same time his ideas were away from the reality. They were highly idealist ideas or they were highly utopian ideas. इस तरह से you can write. ठीक है, तो प्लेटो लिखेंगे तो पॉपर के 3 पॉइंट्स हम हमेशा प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद फाइनली अगर मॉडर्न डे से लिंक करना है, अपने पास अभी 20 वर्ड्स 20 मार्कर है, तो मॉडर्न डे से लिंकेज अपना स्टैब्लिश हो सकता है. एक बात आप थॉट में हमेशा ध्यान रखना कि वाइल सपोर्टिंग आप उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जरूर स्टैब्लिश करो, तभी तो सपोर्ट कर पाओगे. डिस्पाइट ऑफ द क्राइसिस, डिस्पाइट ऑफ द थ्योरीज ही हैज गिवन, वी कैन स्टिल फाइंड इट रेलेवेंट. ये आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी ये वर्क कर रहा है. डन. ठीक है, तो ये हो सकता है. अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्लेटो में हमें मिल जाए. प्लेटो में हमें एजुकेशन में मिल जाएगा. इन द मॉडर्न डे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है. दैट इज समथिंग, या दैट काइंड ऑफ प्लेटोनिक वर्क इज स्टिल वेरी मच रिलेवेंट. अदरवाइज बाकी चीजें फिलोसफर किंग के लिए भी देखो, इफ वी विल ट्राई टू मैप इट विद द रीजन. सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से दैट अ किंग शुड हैव अ रीजन टू रूल. सो समवन हु हैज विजडम, ठीक है, एंड रीजन टू रूल ऑब्वियसली वुड बी अ गुड रूलर एज कंपेयर टू द पीपल हु डजंट हैव विजडम टू रूल. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि उसके एजुकेशन के आइडिया को, मॉडर्न डे रेलेवेंस, उसके फिलोसफर किंग के विजडम को, किंग को नहीं विजडम को, क्योंकि वो ये भी तो कहना चाह रहा ना कि विजडम से रूल करेगा. एंड द वन हु रूल्स विद द विजडम वुड बी एबल टू सेल थ्रू द मॉडर्न क्राइसिस. मॉडर्न डे की जितनी भी क्राइसिस, एनवायरमेंटलिज्म, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, सिविल वॉर्स, पॉवर्टी, ये कौन सी गवर्नमेंट फाइट कर सकती है? जो विजडम से काम करती है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट एट द एंड. You can compare, but उसपे आप कह सकते हो in the modern monarchies we have seen that many kings are working with in form of wisdom and they have seen the best development, best possible development has been done in their reign. ठीक है, for example Saudi Arabia and Middle Eastern nations, few Middle Eastern nations, not all. तो आप बता सकते हो. देखो यही होता है कि the more you would be able to link, लेकिन हाँ कितना लिंकेज पे फोकस करना है. लिंकेज का फोकस होना चाहिए लास्ट का एक पैराग्राफ, सेकंड लास्ट एक पैराग्राफ, जहां पे अब आपको खत्म करने जाना है टॉपिक, तो वही लिंक होना चाहिए. क्योंकि उससे पहले आप थ्योरी दे आओगे, क्रिटिसिज्म दे आओगे, लिंकेज दे दोगे और फिर उसको वाइंड अप कर दोगे. क्लियर. फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐसा ही रहेगा. अच्छा, ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, तो जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है कि लेविंसन का डिफेंस ऑफ प्लेटो है. कंक्लूजन यही है, फाइनली एक कंक्लूजन मिल जाता है. अच्छा, ये थोड़ा सा कंक्लूजन बड़ा ही क्लीशे हो गया, हर कोई लिख रहा है इसको, ये इनवाइटेड, हर कोई यही चिपका देता है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ना कंक्लूजन को ले जा सकते हैं विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, नेवरदलेस despite of the totalitarian ideas Plato has given, his thought process, his political thought has become the foundation stone of the development of the Western political thought, which is still very much relevant and has given birth to the modern day political systems. इस तरह से लास्ट में आप वाइंड अप कर सकते हो, क्योंकि ए इनवाइटेड अब बहुत पुराना हो गया, मतलब हर कोई लिख ही रहा है इसको. तो आप उसको रादर देन स्कॉलर्स की जगह आप उसे जेनरिक आज के मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी इंपॉर्टेंस देके खत्म कर सकते हो. दिस कैन बी अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन अ गुड कंक्लूजन. तो हमें समझ में आ गया गुड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन अगर 10 मार्कर है, सो 10 मार्कर में यू कैन डायरेक्टली जंप अपॉन टेकिंग द क्लू फ्रॉम द क्वेश्चन, राइटिंग डाउन द आइडिया. 20 मार्कर और 15 मार्कर, व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, 20 मार्कर थोड़ा ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, and then jumping upon to the theory, then criticism, then relevance, and then finally conclusion. ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी. ये इस बार का क्वेश्चन है, इसे भी डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को. जैसे ले लेते हैं, ये भी करंट से है.
ये तो डायरेक्ट कह रहा है एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। अब ये क्वेश्चन अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगेन इट्स अ 20 मार्कर, ये 15 मार्कर है। चल, explain the Aristotelian view of politics, to what extent do you think it has contributed? Now question is divided into two parts. Part number one is view on politics and relevance in modern democracies, in modern day democracies. Now want to try या सीधा डिस्कस करें? चलो 2 मिनट ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। Try to recollect your thoughts. Done. Now, how such kind of questions can be written? Let us say it's a 15 marker or a 20 marker. Usually ऐसा question 15 या 20 में होगा, given the length of the question. ये 10 marker में नहीं आएगा. 10 marker में it would have been a direct question. The question would have been Aristotelian view of politics. ये हो सकता था. But they are also asking to what extent do you think it has contributed to the development of the modern constitutional democracies? अब first thing first is you have to introduce. अब यहाँ पे कोई criticism नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। डू यू फाइंड सच एनी क्रिटिसिज्म ओवर हियर? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपने पास स्कॉलर नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इट्स अ वेरी ग्रेजुएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस एरिस्टोटल। You need to tell them that being a disciple of Plato, he was the author of a very famous work. He was the one who focused upon the comparative politics. He was the one who has started the ideas of who has given the foundation stone to the modern day constitutional systems. He was the one who was an empiricist. He was the one who was a pragmatist in the time of the idealism. इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि आप एरिस्टोटल के बारे में क्या क्या लिख सकते हो। प्रेगमेटिस्ट लिख सकते हो आइडियलिस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में आप लिख सकते हो। द फाउंडर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिख सकते हो। तो इस तरह से आप बता सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हिज फेमस वर्क पॉलिटिक्स हैज मेंशन्ड अ लॉट अबाउट और हैज मेंशन्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द modern day
कॉन्स्टिट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस इन जनरल। तो उसका ये पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। तो ये हो गया एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये तो उसका आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ही हैज बेसिकली फोकस्ड अपॉन द एम्पिरिसिज्म, साइंटिसिज्म, कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इतना ही। नाउ सेकेंड थिंग विच कम्स इज, अब बताने आपको उसके व्यूज ऑन पॉलिटिक्स। सेकेंड थिंग हैज टू बी हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स। व्हाट आर हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स? क्या लिखा? comparative studies, figuring out polity as best form, rule of middle class, golden mean, ठीक है। सो दिस वर इज फेमस व्यूज ऑन पॉलिटिक्स। अब आप क्या करेंगे, एक एक को यू कैन एक्सपैंड। ये तो आई हैव जस्ट एडेड दिस, इसकी जरूरत नहीं है हमें लिखने की, दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। आप इसे डायरेक्टली बता सकते हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, और आपको बाद में उसको रिलेट भी करना है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आप बता सकते हैं कि ही हैज द वे ऑफ राइटिंग डाउन थिंग्स, ही वाज अ pragmatist, he was a systematic thinker, he was a scientific thinker, he gave the comparative idea, and finally he came out with the concept of the golden mean rule, he came out with the concept of the idea of the polity as the best form of government। ठीक है, तो ये सारी चीजें ला सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बारकर को यूज कर सकते हैं कि बारकर ने कहा है that his writings have been very much systematic and have provided a value to the modern day constitution, से बारकर ने कहा हुआ है। तो इसमें आप बारकर को यूज कर सकते हैं that his ideas were highly important। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम। तो सिंपल आप आ जाओ कि मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम से इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। डू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे? अ लॉट। यहीं से आ जाएंगे कि इसका जो डेवलपमेंट रहा दैट हैज बीन अ लॉट इन द मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम्स। क्या क्या रहा है इसका मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम्स में? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, citizenship based system, rule of law, then his idea of justice, which is the basis of the modern day constitutions। आज के constitutions का basis तो justice ही है, justice as basis of modern day constitutions। now जस्टिस में आ जाएगा, सब जस्टिस में आ जाएगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? दैट डिपेंड्स फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। वहां के लोगों के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, दैट इज जस्टिस। ना जस्टिस फॉर अस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड जस्टिस इन यूएस। तो ये हम कह सकते हैं कि एज पर द मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशंस हिज आइडिया इज जस्ट टू प्रोवाइड justice, or constitution is the basis of, or a guiding light or a basis of providing justice to the current nations, current people। लेकिन अब बात आती है, do you have some limitations? Despite of his ideas being highly relevant, his ideas are not directly applicable in the modern political systems। modern constitutions में इसके ideas directly applicable नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? limitations। In the garb of giving a limited citizenship, he has created an elite society। elitism is against democracy। तो मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी वर्सेस एलिटिज्म आ जाएगा, एलिटिज्म वर्सेस ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। सबसे बड़ा इसका कंसर्न क्या है कि एलिटिज्म वर्सेस ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा आ जाएगा, वही उसी से आएगा, few people engaged। ठीक है। his concept of equality is also not applicable।
proportionate equality में भी he focused too much upon the concept of desert, the one who deserves, on the concept of merit. His society is all about merit. Modern day societies में if you will only focus on merit, then जो आपकी जो modern day debate of reservation that would be nullified. तो इसका जो concept of desert and merit है is not justified in the modern day systems जहां पे reservation is also a necessity. Focusing merely on merit will again create an unequal society. भाई मॉडर्न डे में अगर आप सिर्फ मेरिट पे फोकस करोगे तो अनइक्वल सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी, अनइक्वल सोसाइटी. डन. सो दीज आर हिज मेजर लिमिटेशंस. टू एन एक्सटेंट कई बार हम कह सकते हैं. अच्छा, दूसरा है स्लेवरी. अगेंस्ट मॉडर्न आइडिया ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी इनफैक्ट इसको तो आप क्रिटिसाइज करा सकते हो. यहां पे स्कॉलर्स यू कैन यूज इज रॉल्स, स्कॉलर्स यू कैन यूज इज मार्था, डॉर्किन, ये सब, एंड देन फाइनली अमर्त्य सेन. यहां पे लिमिटेशंस में आप with the help of the scholars you can write down the limitation. And then finally, nevertheless, despite of the limitations, his ideas have provided a base to the modern constitutional systems. ठीक है, तो मॉडर्न डे में इसके आइडियाज जो हैं, ओनली एलीट सिस्टम बताया, प्रॉपर्टी वुमेन स्लेव्स नॉन प्रॉपर्टी ओनर्स को नहीं दिए, कॉमन गुड, या फिर उसने इक्वालिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एलीट सिस्टम को प्रोवाइड किया. ही नेवर प्रोवाइडेड एनीथिंग to the other sections of the society. यानी he has created a unequal society of his times. तो आज की डेट में तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. Despite of the limitations, his idea has been highly influential in the development of modern constitutional based democracies. At least he has provided a foundation stone to the modern constitutional democracies. इस तरह से आप लिख सकते हैं. अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है प्लेटो और एरिस्टोटल से मिलके. एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटो, एक ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है. देन इसी तरह का क्वेश्चन है, जॉबेट ने कहा था द कमेंट्स ऑन एरिस्टोटल ऑन प्लेटोज रिपब्लिक आर फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज. क्वेश्चन ये कहता है दैट द कमेंट ऑफ एरिस्टोटल व्यू और एरिस्टोटल ऑन प्लेटोज रिपब्लिक आर फुल ऑफ inadequacies and inaccuracies. The first thing is, after reading the question, try to figure out, do you justify this question? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है, ये सही है? Do you think it is correct? Aristotle, whatever Aristotle has said about Plato, is everything right? Was Plato all wrong? Platonic thought एकदम सही नहीं था. क्वेश्चन यही है ना. 20 मार्क का एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटो, उसको सीधा समझते हैं एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटो. फॉर दैट यू नीड टू टेल हु वाज एरिस्टोटल, हु वाज प्लेटो. एक साथ आ जाएगा इंट्रोडक्शन में. देन यू नीड टू टेल द थ्योरीज ऑफ प्लेटो फर्स्ट, क्योंकि पहले प्लेटो की थ्योरीज बताओगे, फिर उसको एरिस्टोटल से क्रिटिसाइज कराओगे, फिर एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करोगे कि डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म या डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिक, एरिस्टोटल हैज आल्सो टेकन दिस इन अ रॉन्ग वे, है ना. तो एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करेंगे एंड देन फाइनली वी विल कम अप विद अ फाइनल कंक्लूजन. क्लियर? तो क्या लिखोगे इसमें? या जॉबेट कहता है दैट एरिस्टोटल्स, या इस क्वेश्चन को इस तरह से ले लेते हैं. ये पहला वाला तो लिख ही लोगे आप, ये वाला लेते हैं. अगर क्वेश्चन सेकंड वाला हो तो हम कैसे लिखेंगे? कमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल ऑन प्लेटोनिक रिपब्लिक और प्लेटोज रिपब्लिक आर फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज. तो इट्स एन ऑल नेगेटिव थिंग. यानी क्वेश्चन नेगेटिव जा रहा है. ये कह रहा है एरिस्टोटल ने जो भी कहा वो गलत था. इनएक्यूरेसी एंड इनकंसिस्टेंसी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि व्हाटएवर एरिस्टोटल हैज सेड वाज रॉन्ग. पार्शियली ही वाज करेक्ट एंड पार्शियली ही माइट बी रॉन्ग, है ना. ही माइट हैव अंडरस्टूड हिज थ्योरीज इन अ रॉन्ग लाइट. तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस ग्रीक थिंकर्स. दोनों को इंट्रोड्यूस एक साथ करना पड़ेगा. यू हैव टू इंट्रोड्यूस द ग्रीक थिंकर्स टुगेदर. एक साथ दोनों का इंट्रोडक्शन आएगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन डू यू सजेस्ट? क्या लिखा जा सकता है?
ठीक है, नहीं इसको इंट्रोडक्शन में, इसको कंक्लूजन में यूज करो. व्हाट एल्स? ये तो कंक्लूजन हो गया ना. इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. जब भी पता है एरिस्टोटल का क्रिटिक पूछ लें प्लेटो से, तो आप कह सकते हो कि कोई ऐसा थिंकर नहीं था वर्ल्ड में जिसको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है जितना प्लेटो को मिला है. ठीक है, एंड ही ऑल्सो हैपन टू बी द ओनली थिंकर हु वाज क्रिटिसाइज्ड बाय हिज ओन डिसाइपल. तो इस तरह से यू कैन स्टार्ट, और यू कैन स्टार्ट with the idea that both the Greek philosophers had a very common understanding of creating a justice-based society, a justice-based state. Both of them wanted to create a just state. In lieu of creating a just state, both had their own ways of creation. Yeah, both had their own philosophies. Yeah, both developed their own ways of creating a just state. इस तरह से you can start that both of them had only one vision. Objective was to create a just state. Justice was their final target, and they had their own philosophies. दोनों की philosophies were different. So first tell the Platonic philosophy, then criticize Platonic philosophy through Aristotelian lens. Then, despite of the criticism, both of them have contributed in the development of the Western political thought. Clear? अब इसमें आ जाते हैं, जैसे अब सीधा, अच्छा इसमें ना पूछा हुआ जॉवेट का है, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ जॉवेट का, जॉवेट इज अ प्रोफेसर. तो हम जॉवेट से क्या कहा है क्या नहीं कहा है, हम उससे इतना ज्यादा हमें इंपैक्ट नहीं होता. जॉवेट लिखो, कुछ भी लिखो, आइडिया वही आ जाता है, एरिस्टोटेलियन क्रिटिक ऑफ प्लेटोनिक थॉट्स. सिंपल. अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट कर दिया कि बोथ ऑफ देम वर द ग्रीक फिलोसफर्स. वन हैड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग एन आइडियलिस्ट वर्ल्ड, अनदर वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट creating a pragmatist world. Both of them, but ultimately both of them wanted a just society should be established to fight the problems or to eliminate the problems of the then Greek system. इस तरह से आप एक introduction लिख सकते हैं. Now tell them about what exactly was the Platonic idea. So Platonic concept of virtue, Platonic concept of philosopher king, Platonic concepts of एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम, प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये प्लेटोनिक आइडियाज थे. अब इसमें दो चीजें कर सकते हैं. प्लेटोनिक आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है. या तो आप हैंड इन हैंड लिख सकते हो, अगर यू आर प्रो इन दैट, आपने प्लेटोनिक आइडिया लिखा और इमीडिएटली उसको एरिस्टोटल से क्रिटिसाइज करा दिया. ये एक अच्छा तरीका है 20 मार्कर लिखने का. बट अगेन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यू नीड टू हैव रेडी पॉइंट्स. नहीं तो क्या होगा कि अगर आप हैंड इन हैंड क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो फिर आपको पास हो सकता है कि आपके पास थॉट है और उसका क्रिटिसिज्म इमीडिएटली याद नहीं आ रहा. लेकिन वैसे तो यहाँ स्टैटिक चीजें हैं, तो हैंड इन हैंड कर दोगे तो चीजें ठीक रहेंगी. जैसे हम कहते हैं एरिस्टोटल टू चैंपियन आइडियलिज्म प्रीमेसी ऑफ नॉलेज, रिजेक्टेड प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म बट डिड नॉट रिजेक्ट दैट देयर इज नो फॉर्म. कहता तो है ना कि प्लेटो कहता है कि फॉर्म पहले आता है, मैटर बाद में आता है, लेकिन एरिस्टोटल कहता है दोनों साथ में आता है. यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म तो एग्जिस्ट करती है, प्लेटोनिक सेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल. तो आप इसको हैंड इन हैंड भी क्रिटिसाइज करा सकते हो. क्लियर? तो हैंड इन हैंड क्रिटिसाइज क्या करा सकते हो. ठीक है, बोथ वांटेड अ वर्चुअस स्टेट. प्लेटो वांटेड दैट वर्च्यू, द फिलोसोफर किंग इज द मोस्ट वर्चुअस पर्सन, whereas on the other hand he said that middle class are the most virtuous person. असली वर्च्यू तो उन्हीं में, बाकी दोनों में तो वाइसेस हैं. तो यानी वर्च्यू पे तो दोनों फोकस कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है वर्च्यू में. हाँ, प्लेटो वांटेड दैट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड और द पीपल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, whereas Aristotle had the view of only middle class people can run the system. Then उसके बाद दोनों ही सोफिस्ट ट्रेडिशन के अगेंस्ट थे. Despite of the differences, both were in favor of dialectics. That dialectics can be only solution to ensure justice in the society. तो दोनों ने ही dialectics को सपोर्ट किया. क्लियर? दोनों. हाँ, फिर अब आ जाते हैं, लेकिन हाँ कई जगह पे रेडिकल क्रिटिसिज्म में that Aristotle was not happy with the radical ideas of Plato. जैसे he was not happy with the communism of family, communism of property. For Aristotle, property was a sense of achievement. Property was something which was highly essential. Both talked about the organic theory of state. दोनों ही organic theory of state की बात करते आए हैं और दोनों ने ही state को ऊपर रखा है. Human is a unit in the state system. तो ये दोनों की commonality हो गई. ठीक है, तो अब आप commonality के साथ साथ कर सकते हैं
अच्छा, लास्ट में आप कह सकते हैं कि बोथ वर इन फेवर ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटी, बोथ वांटेड टू हैव अ ethical system. Polity should be based upon ethics, and ethics is the most important scenario. And both the thinkers were of this view. There is a natural inequality existing in the society. Inequality naturally exists करती है, and that has to be rectified. ठीक है, अब प्लेटो ने कह दिया कि नेचुरल इनइक्वालिटी के लिए प्रोपोर्शनेट जस्टिस ले आओ, और एरिस्टोटल ने कह दिया प्रोपोर्शनेट जस्टिस ले आओ, और प्लेटो ने कह दिया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करा दो। दोनों मान के चल रहे हैं कि ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ सेवरल डिफरेंसेस both were going towards a common objective, and that was creation of a justice based state. And both the theories, both the thinkers are highly relevant in the modern system. एक ये। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, अगर इस टॉपिक को आप करंट से लिंक नहीं करना चाहते, इसको आप वहीं एंड करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि एरिस्टोटल was the one who added pragmatism to the Plato's idealist thoughts and made it functional in the modern democratic functions, in the modern democratic societies. यानी प्लेटो के आइडियलिज्म में एरिस्टोटल ने प्रैग्मेटिज्म भर दिया, और आज हम उस थ्योरी को यूज कर पा रहे हैं। He gave life to the ideas of Plato. Aristotle was the one who gave life to the ideas of Plato by instilling the concept of pragmatism and making it functional in the modern political systems. क्योंकि आज भी क्या है, गांधी भी तो यही कहते हैं कि एथिक्स और पॉलिटी साथ चलनी चाहिए, तभी वो एथिक्स तभी वो पॉलिटी काम की है। एजुकेशन पे आज भी यही मानना है कि एजुकेशन इज समथिंग विच हैज टू बी होलिस्टिक इन नेचर। विजडम की बात तो आज भी होती है कि रूरल के किंग के पास या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो विजडम पे फंक्शन करना चाहिए। जस्टिस तो आज भी सोसाइटी डिमांड करती है, जस्टिस तो आज भी बेसिस है, मॉडर्न डे स्टेट्स का बेसिस आज भी जस्टिस ही है, इट्स स्टिल दी जस्टिस। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ पैरेलल। यू कैन फर्स्ट टॉक अबाउट वन पर्सन, his ideas, get it criticized by the second person, then establish a harmony between them, harmonious hai, and then telling them कि it was Aristotle who added life to the Platonic thoughts, and finally Platonic thoughts along with the Aristotelian viewpoints are fully functional and applicable in the modern democratic systems. और यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विजडम बेस्ड रूल, ethics and politics, Gandhi's concept of ethics with politics is highly important in the modern day system. Getting this? So this is how you can come and you can finally, आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर दिया, आपने दोनों को हार्मनी में भी बता दिया, और उनका मॉडर्न डे रेलेवेंस भी स्टैब्लिश कर दिया। लिख लोगे ना? ठीक है, तो इसमें आज सच कोई क्रिटिसिज्म अलग से लिखना नहीं है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन लेते हैं, द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वॉर। ये हाईली मॉडर्न करंट रिलेवेंट है। स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वॉर, ये तो स्टेटमेंट है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हॉब्स पेसिमिस्ट व्यू of human nature in explaining modern crises like pandemics, terrorism, and civil unrest in 15 marks. ठीक है, now try to write. अब समझ गए, आप एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करो। This is just a statement. State of nature is state of war. What is this? War of all against all. Try to discuss the relevance in context of pandemics, terrorism, civil unrest, modern days problems, सब कुछ आ जाएगा। Authoritative governments, सब कुछ आ जाएगा इसमें।
right? Let us say the question is of this nature: justify Hobbes' social contract in contemporary times. इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या फर्क है? Justify Hobbes' social contract in contemporary times, or state of nature is state of war. Discuss the relevance of Hobbes' pessimistic view of human nature explaining modern. अब देखो दोनों में क्या है, what the basic similarity between both of them is, you need to just, yeah, basically what he's trying to do over here is, he was trying to tell us the state of nature so that he can convince us कि we need to do a social contract. उसने हमें लेवियाथन का एक कन्विंसिंग पॉइंट दे दिया कि स्टेट ऑफ नेचर खराब है इसलिए लेवियाथन करो. तो यहाँ पे भी वही है कि मॉडर्न डे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों है. मॉडर्न डे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत इसलिए है बिकॉज मॉडर्न डे पॉलिटिक्स is marred by the problems like pandemics, terrorism, civil unrest, and similar kinds of problems across the world. And that is why we need a strong governments, absolutist governments, and a social contract so that these problems can be removed, they can be fought. ठीक है. हाँ. Government in the sense here you're trying to say like strong global institutions. उस sense में बोल रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में आप इन दी इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स भी कर सकते हैं. लेट अस से सीरिया रिक्वायर्स अ गवर्नमेंट, or the Yemen requires a government, anywhere. Plus obviously you need to have the strong social institutions, strong institutions across the world who are able to control the crisis. And जैसे पेंडेमिक के केस में क्या हुआ, अब आपको WHO इंपॉर्टेंट होना जरूरी था, अदरवाइज द वैक्सीन, क्योंकि हर जगह क्या होने लग गया, वैक्सीन नेशनलिज्म होने लग गया. सो रादर देन वैक्सीन नेशनलिज्म वी शुड फोकस अपॉन some nation या some kind of institution जो वैक्सीन के प्रोलिफरेशन में हेल्प करे. Now next comes the state of nature is state of war. इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो पहली चीज हमें बताना होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना. स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर. इट्स अ 15 मार्कर क्वेश्चन. सो what you can do is you can devote almost more than half of your page in telling them what exactly is the state of nature. तो जस्टिफाई करो. तो इसमें सबसे पहले आप हॉब्स को इंट्रोड्यूस कर दो. इंट्रोड्यूस हॉब्स ओवर हियर. हॉब्स, हिज फेमस वर्क, हॉब्स, हिज प्रॉब्लम ऑफ सिविल वॉर, हिज फेमस वर्क्स. Okay. Then state of nature. Here you can focus upon the Hobbes concept of state of nature. Then ultimately, why this problem? Human created this problem. Then obviously the solution was a social contract. Now you can tell them in the similar manner we have modern day problems. This is the structure. Modern day problems, and obviously a social contract would be able to fight these modern day problems. Okay. इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर सकते हो. एट द एंड कह देना कि यस, डिस्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एन absolute system will create more problems. So rather than going with the Hobbes style, we should focus more upon the Locke style of the system, in which proper democracies can be established along with the social contracts, and people would be able to or these problems can be removed easily. ठीक है. तो इस तरह से आप कर सकते हो. एट द एंड आप बता सकते हो कि these modern day problems will definitely, the Hobbes idea is not definitely going to help us in the modern day problems. So what we need to do is, because this was an overly pessimistic idea, this was basically further reformed by Locke and Rousseau. So rather than focusing upon the Hobbes style of social contract, we can focus upon the Locke's and Rousseau style of social contract, so that these modern day problems can be changed and converted into opportunities, and stable systems can be established in democratic way. Clear? And not just this, आप एक ये भी कह सकते हो, not just the state, the role of non-state actors को भी आप establish कर सकते हो. Role of non-state actors. Why only state? Non-state actors can also play a very important role in the stability of the
इंटरनेशनल सिस्टम, तो उसका भी आप रोल स्टैब्लिश करा सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? Now this is a PYQ. How would I and my fellow human beings behave if we were to find ourselves in a state of nature? What does this behavior tells us about our innate predispositions? एक ये क्वेश्चन हो गया, एक हॉब्स का एब्सोल्यूटिज्म हो गया, और एक पहले वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें यू हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, बट हाँ, द कंटेंट इज गोइंग टू बी सेम, बट राइटिंग स्टाइल हैज टू डिफर। इसमें और पहले में क्या डिफरेंस करोगे? यह स्टेट ऑफ नेचर को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इट्स मोर अबाउट स्टेट ऑफ नेचर, वहां पे इट वाज मोर अबाउट करंट प्रॉब्लम्स। वहां पे स्टेट ऑफ नेचर वाज अ ग्लिम्स ऑफ स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ नेचर। यहाँ पे फोकस अपना रहेगा कि सेंट्रल थीम ही पूरे लेवियाथन की यही थी कि आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वी हैव टू फोकस अपॉन द सिस्टम इन विच ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इज अ सेंट्रल पॉइंट। It's all human. Human is bad, human is nasty, human is selfish, human has an issues, human behavior has problems. यहाँ पे सब कुछ वही हो जाएगा, and then you have to finalize कि yes, because of the above told problems, our contract is necessary, but that contract is not all essential thing, because that contract is not going to offer us something good. ये मैकफर्सन कहता है, ये ओक्सफोर्ड कहता है, ये बाकी लोग कहते हैं, ये तो रूसो ने भी कह दिया, और ये बाद में लॉक ने भी बोला आके। चार स्कॉलर से आपने उसी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज करा दिया, बट नेवरदलेस अगर आज के कंटेम्प्रेरी सिस्टम को देखो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एसेंशियल, बट देयर हैज टू हैव सम काइंड ऑफ सेफगार्ड्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दोस सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 10 मार्कर में आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, 4 स्कॉलर्स आर नॉट नेसेसरी, 2 स्कॉलर्स वुड सफाइस, और यहां पे स्कॉलर्स आर हाईली रिपीटेटिव इन नेचर, बार बार वही स्कॉलर्स आ रहे हैं, रिपीटिशन इज वेरी हाई। क्लियर? ये मैंने 10 मार्कर में दिया है। अच्छा, उसके बाद आई विल प्रोवाइड दिस मॉडल आंसर, तो आप इसको ना 15 मार्कर में भी पढ़ना हो। उसके बाद ये एट लेंथ है, देयर इज नो पॉइंट गोइंग एट लेंथ, चीजें वही हैं। So then there is a long answer attached to the short answer. So long answer it's an extra thing, वही सब चीजों को और stretch कर दिया गया। It's again the full-fledged connecting it with the modern problem. Application to the contemporary crisis, how such kind of social contracts are going to help in the modern crisis. Right. Done. एक और क्वेश्चन था, वापस हॉब्स पे चलते हैं, फिर मैकियावेली पे आएंगे। अच्छा, मैकियावेली के केस में मस्ट हैव सीन द क्वेश्चन हैज बीन ऑन द सेक्युलरिज्म वर्सेस पॉलिटिक्स, वही एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं दूसरा डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ, वो भी आप ऐड कर सकते हो, बिल्कुल। यूएस के कैपिटल राइट्स पे है, लॉस एंजल्स वाला इशू है, सोशल अनरेस्ट है, ठीक है। सो वो बताता है स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन बाय नेचर इज वेरी सेल्फिश, ब्रूटिश, ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू हैव सेफगार्ड्स टू एवेंज या टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव सिस्टम होना नेसेसरी है। अब 2022 का क्वेश्चन था, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, and it's just like Hobbes started as an absolutist, individualist, ended as an absolutist, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट यू कैन, अब ये इट्स 15 मार्कर, तो चलो ये तो आप पढ़ा होगा कई बार, बताओ इसको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या क्या चीजें लिखोगे? हॉब्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट, हॉब्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। इसमें एक बात ध्यान रखना, इट इज वाइडली बिलीव दैट हॉब्स के लिए कहा जाता है कि हिज इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म आर सेम साइड ऑफ वन कॉइन। तो इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, नॉट सेम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेम कॉइन।
One thing you can keep in mind, Hobbes, Rousseau, both have been called as thinkers of paradoxes, in fact. They have presented a very paradoxical situation. Then, can I discuss? क्या लिखा? Agar question has been asked in this format, individualism and absolutism are different sides of same coin. So this is what they are trying to ask you, ki whether his concept of individualism has brought the idea of absolutism. While discussing individualism or while protecting the human, he went a step ahead and created a absolutist state, a Leviathan. तो यानी यहाँ पे आपको यही दोनों ही केसेस में एक ही जस्टिफिकेशन देना है, that he happened to be a thinker, he is widely termed as a thinker of paradoxes. ये वैसे हम कंक्लूजन में यूज करेंगे तो बेटर लगेगा, बट आप स्टार्ट कर सकते हो कि हॉब्स in his famous work Leviathan wanted or has talked about the idea of the social contract. So why he is an individualist? Why is he an individualist? Self-preservation, safeguarding human liberty, ensuring their property, safety to their property, safety of life, everything was being discussed. Okay, and because he studied the human in a scientific manner, and this is where he got to know that human is required to be preserved and self-preservation is very much essential. Why? Because there was a ongoing state of nature, and this state of nature forced him to give an absolutist idea, and that idea is the Leviathan as a social contract. And finally, at the end, you can say that he has been termed as a thinker of paradoxes. अगर स्टेट क्वेश्चन सीधा है तो आप लिख सकते हो his these two concepts are not individualistic in nature, are not unrelated in nature, rather they are the different sides of the same coin. For promoting the self preservation, he had to provide an absolutist system. और अगर 15 मार्क्स हैं, you can also establish with the contemporary world. How? कैसे करेंगे contemporary? Let us say in the era of anarchies, terrorism, maintenance of law and order, the governments have passed absolutist laws like UAPA, surveillance or right to interfere, और right to surveillance कर देते हैं, वो बेटर रहेगा. And why they are being done? They are being done only to protect human. ये क्यों आया है? Just to protect the human. So that is why we can establish, इसको contemporary world से भी आप establish कर दो, क्योंकि 15 मार्कर है. कितना स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन एब्सोल्यूटिज्म पे लिखोगे? तो अब आपके पास राइट टू
आईटी रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में उन्होंने कहा ना, ऑन वन साइड यू हैव द राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, राइट टू सेफगार्ड योर इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें कह दिया है कि सेंसिटिव डेटा वुड नॉट बी सेफगार्डेड एंड दे हैव नॉट डिफाइंड व्हाट इज सेंसिटिव डेटा इन द गार्ब ऑफ यूएपी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट ही तो है, बट अगेन दे जस्टिफाई, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी लिंक्ड ओवर हियर, जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया कर सकते हो, दे हैव क्रिएटेड एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट. Then the Myanmar's crisis, Myanmar की Burma की crisis is again the same thing, that they have created an absolutist state because they wanted to protect individualism. So in the garb of protection of individual, they are creating an absolutist system. ये तो contemporary world में है. अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में लेटेस्ट अगर 15 मार्कर है, तो 15 मार्कर में you have 3 pages. You will not be able to write more than half page introduction. Another 1 page, not more than 1 page, I'm saying, matlab another 1.5 page can be devoted to his concept of individualism and absolutism, and then you can talk about the contemporary relevance of Hobbes' thought process. उसका thought process गलत नहीं था, उसका thought process एकदम सही था. Whenever a state would try to preserve the human, it would definitely turn out to be an absolutist. ठीक है. So he was something, that is why at the end you can say, so whatever he wrote are the two sides of the same coin. एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं ये. अगर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना है और सेफगार्ड करना है तो एब्सोल्यूटिज्म तो आएगा ही आएगा. Where there is law, there is less liberty. Less liberty. Where there is law is not speaking anything, over there it is liberty. So इसको where the law is silent there is liberty. तो उसने कहा ना, जहां लॉ कुछ नहीं कहता लिबर्टी वहीं है. मतलब तो यहां पे उसने क्या किया, he has basically guided human actions, that what you need to do and what you don't need to do. अब जैसे let us say in case of the digital data, so digital data is your liberty, but if that digital data is of government use, government can extract it, you cannot talk about your liberty. Privacy is always there, right to privacy is there, but subject to 19 clause 2 of the constitution. Right to freedom of speech is there, subject to 19 clause 2 of the constitution. So you have all kinds of liberty if the law is silent, but if law is speaking something, if law has given you the direction, then only liberty would be utilized in that manner. Law के directive में ही liberty use होगी. Clear है? तो as an absolutist बता देना. फिर इसमें missing है वो point, क्योंकि हम already लिख चुके हैं relevance in the current world. तो ऐड जरूर करना. तो अब देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, while writing the WPT also, you can always write the contemporary relevance. हर चीज का contemporary relevance मिलता है. इसको भी कोशिश करो, try to write the contemporary relevance, because writing the contemporary relevance is nothing but the justification of the age old theory. आज की डेट में जस्टिफाई कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे. तो दैट वुड गिव अ जस्टिफिकेशन. दो बातें हो जाएंगी इससे, कंटेम्परेरी रेलेवेंस से. एक तो आपका जस्टिफिकेशन हो गया, तो आपका आंसर पूरा हो गया. लेकिन अगर आप उसे कंटेम्पररी जस्टिफाई कर देते हो, सो दैट इज समथिंग, दैट आंसर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो वो और स्टूडेंट से डिफरेंट हो जाएगा. 10 मार्कर ऑल्सो यू कैन यूज 1 पैराग्राफ. कंक्लूजन से जस्ट पहले आप सिंपल उसमें सीधा लिख दो. जैसे यही क्वेश्चन अगर 10 मार्कर होता, आपने लिख दिया 2 lines अबाउट व्हाट इज हॉब्स एंड हिज आइडिया, देन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्टेट ऑफ नेचर से वो चला. स्टेट ऑफ नेचर से उसने सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करी. सेल्फ प्रिजर्वेशन वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म, इट वाज ऑल अबाउट protection of human, it was all about human centric approach, which later on, while writing down, penning down in form of Leviathan, turned out to be a absolutist approach. And this very much absolutist approach is, फिर लास्ट में आप लिख दो, आपने पूरा लिखा, and ये सब लिखते लिखते आपको 1.5 पेज हो गया अप्रॉक्स, है ना. you would be writing approx 1.5 page. लास्ट में लिख दो, this very idea of Hobbes is very much visible in the modern day state surveillance, preventive detention laws, where human protection is the center point. And hence it is widely believed that Hobbes' philosophy is nothing but, Hobbes' philosophy of individualism and absolutism are the two sides of the same coin. So over there you can relate it with the current, just 3 lines. 3-4 points लिख दिए, एक साथ ही 3-4 बातें लिख दी और उसमें बता दिया कि how it has a relevance.
ही हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड, कर सकते हैं नहीं, क्रिटिसिज्म तो लिख ही रहे हैं ना उसका, क्रिटिसिज्म तो लिख ही रहते हैं ना यहाँ पे, his concept of absolutism that he has sacrificed human, है ना, while protecting human he sacrificed human. So this can be a absolute, this can be a criticism. He created a all encompassing strong state, that is also a criticism. बाद में वही जॉन लॉक यही कहता है कि this very much concept of social contract is not relevant at all, because in the name of protecting individual you are sacrificing individual. Clear? लेकिन फिर आ जाओगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द सैक्रिफाइस currently all the modern laws are focused only on the protection of individual. In the digital era, digital surveillance is only for the protection of individual. Terrorism, the state owned surveillance systems are also for the protection of individual. तो ये जितने भी नए लॉज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली टू सिक्योर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर द इंडिविजुअल, एंड एट लार्ज प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी सिक्योर हो रहा है. तो फिर फाइनली एंड देन कल्मिनेटेड इनटू अ सिंगल लाइन कंक्लूजन. 150 मार्क्स में इतना क्रिटिसिज्म नेसेसरी है, हर जगह आएगा. ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा टू व्हाट, इन व्हाट अमाउंट एंड एट विच प्लेस. प्लेस एज इन प्लेस तो लगभग वही रहेगी सब जगह, अमाउंट वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड वर्ड लिमिट ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि यूजुअली आप क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन 10 मार्कर में नहीं आ सकता. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां क्वेश्चन ही 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, तो वो तो 10 मार्कर में नहीं होगा. दैट वुड बी इनटू अ 15 मार्कर एटलीस्ट, या इट कैन गो अप टू 20 मार्क्स. बट लेकिन जहाँ सिंगल लाइन सेंटेंसेस हैं, वही सिंगल लाइन सेंटेंसेस 10 मार्कर में भी है, वही इन एट लेंथ भी है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अच्छा, इसमें कीवर्ड्स याद रखना, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, ये सब यूज करता है. एपेटाइट बाय नेचर, ह्यूमन बाय नेचर, सेल्फिश, ब्रूटिश, ये सारे कीवर्ड्स हैं. गाइडेड, ह्यूमन इज ऑलवेज गाइडेड बाय पैशन, तो ये सब मैंने ना बोल्ड कर दिए, ये जरूर याद रखना. वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड परपेचुअल पीस, रूसो स्टेट ऑफ नेचर वाज ब्लिस एंड परपेचुअल. वैसे तो इसके यही 2 क्रिटिसिज्म आ जाते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं. हाउ डज एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये जस्टिस बाद में लेंगे. एक मैकेवली का क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू जस्टिस, और जस्टिस में पूरा जस्टिस डिस्कस हो जाएगा. नाउ एक्सप्लेन हाउ मैकेवलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पेरिकल मेथड टू ह्यूमन अफेयर्स मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ये भी पीवाईक्यू है. क्वेश्चन इज, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाउ मैकेवलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पेरिकल मेथड टू ह्यूमन अफेयर्स मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अगर इसे हम क्रिस्प करें, एक लाइन में क्वेश्चन अगर रीड्राफ्ट कर दे, तो क्या लिखेंगे? मैकेवली एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. सिंपल क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये बताओ, क्या मैकेवली का जो शिफ्ट है, भाई मैकेवली वाज स्टैंडिंग ऑन द गेट्स ऑफ मॉडर्निज्म, ही वाज द फर्स्ट वन टू एंटर मॉडर्निज्म, है ना. ही केम आउट फ्रॉम द डार्क एज एंड एंटर्ड द मॉडर्निज्म. तो वही पूछा है कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पेरिकल मेथड, मॉडर्निज्म कब आया? साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, रेनेसॉ आया, तभी जो है एम्पेरिकल मेथड आया. यानी मैकेवली का जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो इसी पे बेस्ड है, और इसी की वजह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में. फ्रॉम चर्च एज अ सेंट्रल फिगर, ह्यूमन बिकेम द सेंट्रल फिगर इन द पॉलिटिकल साइंस, और यहीं से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में डेवलप हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा ना, दिस क्वेश्चन इज एवरीथिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ मैकेवली. अब इसमें आपको मैकेवली की सारी बातें लिखनी है कि कहां पे उसने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच करी. उसने सभी जगह कर दी, उसने स्टेट को सेपरेट कर दिया चर्च से. ठीक है, देन उसने ह्यूमन के लिए एम्पेरिकल थॉट प्रोसेस डेवलप करा दिया, रेनेसॉ आ गया. ठीक है, देन उसके बाद सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आ गया, रीजन जो है इंपॉर्टेंट हो गया. कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स में भी आप ला सकते हो कि यार वो बाद में आएंगे. तो ये सारी चीजें उसने किया. उसने कंसिस्टेंटली उस तरह की राइटिंग्स जो थी उसमें उसने ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम को डेवलप किया. फ्रॉम द स्टेट सेंट्रिक सिस्टम इट बिकेम द human, or church centric system, it became the human centric system, in which human was now the final objective, and end was human. ठीक है, तो एंड उसने चर्च से ह्यूमन पे कर दिया शिफ्ट.
वैसे तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने एथिक्स के नाम पे ह्यूमन को मीन्स बना दिया, वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आइडिया वाज दैट यू नीड टू हैव अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, scientific system, empirical based political setup in which there is no requirement of ethics, there is only requirement of realism. तो he also gave the birth to the political realism because उसके लिए भी ह्यूमन जो था वो काफी सेल्फिश था, उसका ह्यूमन भी था सेल्फ सेंटर्ड था और was always thinking about himself. और ये जो आइडियाज हैं दे आर स्टिल रेलिवेंट इन दी मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। इसी का जो आइडिया है ये आज भी मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में काफी ज्यादा रहेगा। बट नेवरदलेस ही कॉम्प्रोमाइज्ड, he had a normative deficit. What is normative deficit? That means he is compromising the norms of the society. He is giving birth to the political immorality. He is called as a teacher of evil. Okay, so he has only made human a means to achieve the ends of power. लाया सब कुछ ह्यूमन के लिए था और ह्यूमन को ही उसने ऑब्जेक्ट बना दिया टू अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। क्लियर? लिख पाओगे? एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड ओवर दिस? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट एंड सबमिट द क्वेश्चंस ASAP. नाउ लेट अस टेक few more questions. हाँ ये ले लेते हैं। How does Aristotle's theory of distributive justice helps in understanding modern debates on equity and affirmative action? Question number 9. How does Aristotle's theory of distributive justice helps in understanding modern debates on equity and affirmative action? So first, चलो करो इसको, थोड़ा सा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। Aristotle's theory of distributive justice helps in understanding modern debates on equity and affirmative action.
Done? क्या लिखा? First thing is the idea of justice. Justice happened to be a very important virtue of the then Greek philosophers. Idea of justice was very much essential to their writings. ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करें या रिपब्लिक की बात करें, justice was the central component of these work. Now, what was his concept of justice? His concept was next try to identify the method involved. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ईदर वी कैन राइट द लिमिटेशंस फर्स्ट और वी आर राइटिंग हिज कॉन्सेप्ट, तो हम ये कर सकते हैं यहां से हम रेलेवेंस भी ला सकते हैं. हाउ हिज नोशन ऑफ जस्टिस आर स्टिल रेलिवेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, the concept of proportionate, the concept of treating unequals और equals equally, either way, ये आज भी रेलेवेंट है. इसका रेलेवेंस स्टैब्लिश करते चलो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14. इसका ये रेलेवेंस है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में. यू स्टिल फॉलो द आइडिया ऑफ अरिस्टोटेलियन जस्टिस. इक्विटी आज भी है, प्रमोट करते हैं. प्रोपोर्शनेट सिस्टम को हम प्रमोट करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं, एंड ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली को. बीएनएस से लिंक कैसे करोगे? एग्जांपल प्रोपोर्शनेट जस्टिस हो गया, वो तो सारे लॉज हैं अपने. वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, वो सब जगह आता है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो आप सब जगह एप्लीकेबल करते हो. तभी कई बार कोर्ट कहती है फॉर सम काइंड्स ऑफ क्राइम्स वी कैन नॉट गिव डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट्स, पनिशमेंट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन. और यही क्रिटिसिज्म भी आता है आपके लॉस का. जैसे पीएमएलए का भी यही क्रिटिसिज्म आता है कि आप उसमें बहुत डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट्स दे देते हो, टू मच ऑफ पनिशमेंट्स. हाँ, जो इंट्रोडक्शन है उसको मींस एरिस्टोटल से लेके मॉडर्न डे लॉज और अमृत सेन का थ्योरी ऑफ जस्टिस से कनेक्ट कर सकते हैं. उसको हम यहाँ बाद में करेंगे, कर सकते हो लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ भी तो देना होगा लिमिटेशंस. वो एक और क्वेश्चन है उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस पूछा है, लिमिटेशंस में देना पड़ेगा कि डिस्पाइट ऑफ दीज मेनी रिलेवेंस इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस. क्या क्या लिमिटेशंस हैं? वही सारे कम्युनिटेरियन क्रिटिक आ गया, या क्या क्या लिमिटेशंस देंगे हम? लिमिटेशंस एज इन नंबर 1 इज ही हैज फोकस्ड टू मच ऑन मेरिट. ये भी वैसे थोड़े पहले भी डिस्कस किया था. देन ही क्रिएटेड द एलीट सिस्टम इन द नेम ऑफ जस्टिस. देन रॉल्स क्या कहेगा? क्रिटिसिज्म. जल्दी आते रहो. रॉल्स ये कहेगा ना कि भाई यू नीड द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली एसेंशियल, कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल हो जाता है. तो यानी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बात ही नहीं करता उसकी. ये तो कहता है जिस पे नहीं है उस पे नहीं है, वो तो इनइक्वल है. तो कहता है कि आप इनइक्वल तो इनइक्वालिटी तो नेचुरल है. अगर आप इनइक्वल रहेगा, अगर आप स्लेव हैं तो फिर आप स्लेव हैं. यू डोंट हैव अ राइट टू गेट एनी काइंड ऑफ जस्टिस. ठीक है. हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी आर्टिकल 39 से कर सकते हैं. इनफैक्ट ये यही पूरा है रॉल्स का पूरा आइडिया, इगैलिटेरियनिज्म. ही इज नॉट एन इगैलिटेरियन पर्सन. मॉडर्न जस्टिस सिस्टम आर मोर ऑफ इगैलिटेरियन नेचर. तो इगैलिटेरियनिज्म को तो प्रमोट ही नहीं करता वो. ये आज की सारी जस्टिस जो है वो इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है. ठीक है, डॉर्किन के केस में कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करा सकते हो आप उसको. क्लियर है?
देन अमर्त्य सेन की भी कैपेबिलिटी अप्रोच यहाँ वर्क नहीं करती, वो भी इसका भी लिमिटेशन है। इसके मेरिट के कॉन्सेप्ट में भी तो एम्बिग्यूटी है, हु इज मेरिटोरियस। इसका जो मेरिट का कॉन्सेप्ट है दैट इज एम्बिगुअस in nature. So he presents a highly ambiguous justice-based system. But again, at the end, despite of all the criticism we have discussed, all the limitations we have discussed, his idea of justice was very much important to his times and established a justice-based society. His ideas are still relevant, आज भी use किए जा सकते हैं. His concept of proportionate justice, his concept of equal protection of law are still relevant in the मॉडर्न डे सिस्टम। अब इसने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात तो नहीं करी, या इसका जो व्यू पॉइंट था डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का वाज नॉट दैट द वन व्हिच रॉल्स वाज टॉकिंग अबाउट, बट अगेन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज बीन अ बेस ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ जस्टिस। इसकी जस्टिस थ्योरी को मॉडर्न थ्योरीज में इंप्लीमेंट किया गया। जस्टिस की थ्योरी को कोई जस्टिस की थ्योरी से कंपेयर करना, कंपेयर नहीं करने की जरूरत है, हम लास्ट में लिमिटेशंस में लिख देंगे ना कि वेयर वाज ही लैकिंग। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये और है, लास्ट है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ये एक स्टेटमेंट था थेसी मार्कस का, रिपब्लिक में लिखा हुआ है, पढ़ा है हमने बार बार। नाउ द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन दिस असर्शन इन द लाइट ऑफ थेसी मार्कस आर्ग्यूमेंट, प्लेटोनिक रिब्यूटल एंड एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तीनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, एंड हाउ दिस डिबेट इज रेलेवेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। देखो इसको पता होने के लिए हमें वो डिबेट पता होनी चाहिए विच स्टार्टेड बिटवीन दीज थ्री। इनके तीनों के बीच की डिबेट यही कहती है, एक ने कहा जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, दूसरे ने आके उसको रिब्यूट कर दिया, बोले ऐसे नहीं होता, और तीसरे ने आके पूरी जस्टिस की थ्योरी दे दी। ये पूरी जो स्टोरी है ये इसी तरह से। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा था क्वेश्चन, मॉडर्न पॉलिटिकल, अच्छा ना, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था या जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था, 2021 का क्वेश्चन है, लेट मी रिकॉल दैट। चलो देखते हैं एक बार। नाउ अगर इस क्वेश्चन को लिखना हो तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू हैव द थेसीमार्कस आर्ग्यूमेंट। थेसीमार्कस आर्ग्यूमेंट शुड बी विद अस, सिंपल है, सबको पता हो, लिखा भी है इनफैक्ट क्वेश्चन में भी देख दिया। दूसरा आ जाता है कि प्लेटो ने कैसे रिब्यूट किया। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ जस्टिस इन जनरल। पहले हमें जस्टिस के बारे में बताना होगा, द आइडिया ऑफ जस्टिस। फर्स्ट थिंग इज आइडिया ऑफ जस्टिस एज बेसिस ऑफ Greek political thought. Greek political thought. Within that, we need to talk about the Thesimarchus concept of justice is interest of strong. ठीक है, अब इसका व्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका व्यू पॉइंट होगा रिब्यूटल और इसका व्यू पॉइंट होगा कोर्सिव। इसका व्यू पॉइंट होगा कैसा आ जाएगा, कोर्सिव हो जाएगा, देन फॉर नॉट फॉर द वीक आ जाएगा, नॉट फॉर द वीक आ जाएगा। फिर इसी को ओवरकम करने कौन आएगा, प्लेटो। So you have to do it like this only. First you tell them what exactly the Greek political thought all about. Then the Thesimarchus idea of justice is the interest of the strong, which is coercive in nature, which is also rooted in the idea of inequality, where the strong runs the system and weak has to follow it. ठीक है, तो सिंपल फंडा आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, सिस्टम को चलाएगा और वीक उसको फॉलो करेगा, ये थेसीमार्कस कहता है। अब इसी को
इसी को चैलेंज करने आएगा प्लेटो. तो प्लेटो वुड कम एंड चैलेंज दिस थॉट. Now comes Platonic idea of justice. It is nothing but rebuttal to the concept of justice of Thrasymachus. अब ये क्या कहता है? Justice as harmony. इसके लिए justice क्या है? Justice is nothing but harmony. यहाँ पे ये justice का पूरा system बता देता है. Then यहाँ पे you can tell about that how he proposes the concept of the tripartite theory. He proposes the concept of specialization, functionalization, and then he proposes the concept of moral virtue system. Okay, then he proposes the concept of the just soul. He proposes the concept of philosopher king should be there to ensure justice. He would be taking care of the every person in the society. On the other hand, यहीं से निकला फिर प्लेटोनिक से निकला एरिस्टोटेलियन जस्टिस. इट इज अबाउट गिविंग ईच वन हिज ड्यू. निकोमेकियन एथिक्स में उसने ये पूरी थ्योरीज लिख दी. देन ही फोकस ऑन द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस rather than corrective one. His idea is that we need to, matlab through corrective one or through distributive justice, you can ensure the correction in the society. And this is where his justice is much better than the above two thinkers, because his justice is highly practical, it is highly grounded, it is very much relevant in the modern day social systems. Modern day political systems also have implemented this theory of justice. पहले हम इसका एरिस्टोटल का जस्टिस अभी लिख के ही आए थे, कंटेंट याद ही है. फिर उसके बाद फाइनली नेवरदलेस कुछ जस्टिस की थ्योरीज हैं वो आज भी रेलेवेंट है. जैसे प्लेटोनिक रेलेवेंस नहीं है, थेसीमार्कस का आज भी रेलेवेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल इंटरनेशनल सिस्टम में, वही सिस्टम चलता आया है. ऑन द अदर हैंड इरेलेवेंट अभी भी एरिस्टोटल की थ्योरीज हैं, बिकॉज इट ओनली फोकसेस अपॉन वन साइड ऑफ द सोसाइटी. नेवरदलेस टुगेदर दे हैव प्रमोटेड और दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ जस्ट सिस्टम जो आज की मॉडर्न जस्टिस थ्योरीज का बेडरॉक बना है. इस तरह से you can write down that this debate is again between them, but nevertheless we have seen in the modern world justice has become the keynote of the modern political states. ठीक है. कर सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज के लिए वही है. पीडीएफ में कन्वर्ट करना. ठीक है, कोई डाउट? नाउ दिस एंड्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बताओ. हाँ, एक रह गया क्वेश्चन, सोचा था कौन सा रह गया. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स सेकंड क्वेश्चन था. सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आया था, एज इन विदाउट एनी मच ट्विस्ट एंड टर्न्स. क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. 15 मार्कर में था इस बार. प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. अब यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस ये लोग दे डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, और आई गेस स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे एग्जाम में. कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ था बहुत टाइम से. Now what exactly is the theory of forms and what exactly is the idea? देखो, here he wants to tell you the theory of epistemology. He wants to tell you the theory of knowledge. He is like that forms over the time will not change, whereas the final culmination is going to change. ये हमने समझा हुआ है. इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है. What exactly is the theory of forms in Platonic thought process? क्या कहना चाहता है वो theory of forms से? Reality state of ideas. ठीक है. So what basically he's trying to tell is he is giving primacy to ideas over
reality. Opposite to Aristotle's viewpoint. What is Aristotle's viewpoint is? There is no idea, there is no object without idea and no idea without final object. इसमें वो फिर वैसा आ जाएगा। चलो बताओ चलो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जो बाहर की जो संगीत है जो उसको वो एक दीवार पे इमेजिन करते हैं बट वो रियलिटी को नहीं देखते। इंटेलिजिबल वर्ल्ड वर्सेस विजिबल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हो गया इसका, है ना। इसने इसमें डिवाइड किया दैट एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड है और एक आपका विजिबल वर्ल्ड है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? फिफ्टीन मार्कर में कैसे करेंगे? बराबर ही है, लेकिन जब उनको असली ज्ञान होगा तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअल हैप्पीनेस इसमें मिल सकती है, लोगों की सेवा करने में बजाय कि उनका ज्यादा। ठीक है, देखो अगर अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने पास सीधा क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, सिंपल दे हैव आस्क्ड अस व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अच्छा ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है ऑफ द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, दैट मींस फर्स्ट यू नीड टू टेल देम। अब इसमें 15 मार्कर है, इंट्रोड्यूस प्लेटो। सेकेंड थिंग इज what is theory of forms? Third thing is why this theory? क्यों लानी पड़ी है theory? Ignorant people justify PK, इसलिए लेके आया ना वो। Benefits of this theory? Who know all the forms? PK know all the forms. मतलब who is the most intelligent person? Who is the most knowledgeable person? Benefits. ठीक है। What is theory? Intelligible versus एक वर्ल्ड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, एक वर्ल्ड जो आपकी विजिबल में है, ठीक है। इम्परफेक्ट है, चेंज है, इल्यूजन्स है, रियल। हाँ ये आइडिया ही पूरा सोक्रेटिस से लिया, ठीक। इस तरह से, लेकिन इनफैक्ट मैं इसको कंक्लूजन में लाने वाला था that this theory of forms was an extension to the dialectics of the Socratic idea of the theory of knowledge। वहां से है, आप इसको स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं कि डायलेक्टिक्स के थ्रू लेके, इनफैक्ट क्योंकि इसको जब हम एंड में सोक्रेटिस लिखेंगे ना, तो हम ये बता पाएंगे कि इसका मॉडर्न डे रेलेवेंस भी है। इन द मॉडर्न डे रेलेवेंस ऑल्सो knowledge, theory of epistemology, theory of knowledge remains the only foundation stone of dialectics and the development of the modern world। ये theory of form जो है ये उस समय जरूर हो सकता है रहेगी, लेकिन आज की डेट में ये एक मॉडर्न थ्योरी को सपोर्ट करती है या फिर एक मॉडर्न डायलेक्टिकल वर्ल्ड को सपोर्ट कर दिया। दैट थ्रू डायलेक्टिक्स व्हाट ह्यूमन हैज सीन ग्रोथ एंड सस्टेनेंस। दिस कैन बी अनदर वे ऑफ पेनिंग इट डाउन। मतलब आप इसको सोक्रेटिस से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप इसको एंड में कि व्हाट प्लेटो हैज डन ओवर हियर इज, क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा ना, क्रिटिसिज्म होगा तो फिर डिफेंस में क्या दोगे? फिर डिफेंस में देना पड़ेगा कि इट वाज नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू द सोक्रेटिक डायलेक्टिक ट्रेडिशन व्हिच इज स्टिल रेलेवेंट एंड कैन बी सीन इन द मॉडर्न वर्ल्ड
where dialectics has ensured the growth and sustenance of the human civilization. Clear है? अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म भी तो है. Why this theory benefits? Then next is criticism. इसका पहला क्रिटिसिज्म कौन लाएगा? एरिस्टोटल ले आएगा. Too much idealistic, somehow non-functional theory. क्योंकि वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स लाना क्यों चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है दैट idea has more prominence over reality, and he just wanted to justify the PK rule because ultimately he is the one who can differentiate between two different forms of life. वो कह रहा है आप लोग तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते इन दोनों फॉर्म्स में. My PK can do this, and this PK happens to be the cornerstone of his state. तो वो इसलिए वो लेके आता है. तो एरिस्टोटल इसे क्रिटिसाइज कर देगा. Both go hand in hand, too idealistic, non-functional theory to an extent. क्योंकि थ्योरी में फंक्शनैलिटी नहीं है. There is no proposition that there is no clarity that how this particular theory is going to be implemented. But nevertheless, आप इसका implementation आज भी देख सकते हो that this is nothing but the part of dialectics. Knowledge से dialectics आएगा और dialectics से you can focus upon human ग्रोथ. ठीक है, इन पर ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो दैट इट वाज अबाउट मेटाफिजिकल डुअलिज्म. दोनों वर्ल्ड को उसने डिवाइड कर दिया. मेटाफिजिकली दो अलग वर्ल्ड हैं. फॉर्म ऑफ गुड, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गुड यही है. एंड देन फाइनली अगर आप इसकी क्रिटिसिज्म लेके आते हैं तो एम्पेरिसिज्म नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पाती थ्योरी, तो थ्योरी इज नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन एम्पेरिकल थ्योरी हो गई. इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे? कहाँ गारंटी है कि दैट आइडिया हैज कम, मतलब आइडिया इज not related to the object or reality. With idea comes reality and with reality comes idea. या तो उल्टा है. In fact, idea is based upon reality. Unless it is not functional idea, it is an illusion. तो फिर तो वो ignorance और illusion लेके आता है. Finally, वही पॉपर का criticism that he has and again provided a ideological absolutism. His theory of form is nothing but an way to justify authoritarian रूल ऑफ दी पीके. वो थ्योरी ऑफ फॉर्म से यही कहना चाहता है आपको बार बार कि मेरा जो पीके है वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है. ही कैन आइडेंटिफाई बिटवीन दीज टू डुअल वर्ल्ड एंड ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू एंड rule you. His rule would be the best rule. His rule would be the rule without ignorance. And when you would be ruled by him, definitely you are going to be a good human being. You would only see justice. ठीक है, डन. इसमें लास्ट में हम एक काम और कर सकते थे. बर्ट्रैंड रसल ने भी, ही इज इंग्लिश फिलोसफर, वो भी यही कहता है कि आज भी हमारा जो वर्ल्ड है वो आइडियाज से ही गाइड होता है. लास्ट में ये है कि रसल हैज सेड दैट द वर्ल्ड इज स्टिल गाइडेड बाय द आइडियाज एंड दीज आइडियाज गिव बर्थ टू न्यू सिस्टम एंड न्यू वर्ल्ड. ठीक है, तो लास्ट में इसको आप कर सकते हैं. 15 मार्कर है. ऐसे क्वेश्चन यूजुअली 15 मार्कर में जस्टिफाई करने मुश्किल हो जाते हैं. तो प्रॉब्लम इज इतना इस पर कंटेंट होता नहीं है. बट हाँ, लेट अस से अगर हम ऐसे क्वेश्चन के अक्रॉस आ जाएं इन विच वी डू नॉट हैव कंटेंट, थ्योरी इन इटसेल्फ इज नॉट मोर देन लेट अस से 100 वर्ड्स. पूरी थ्योरी अपनी 100 वर्ड से पूरी बैठ ही नहीं रही है. सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, डिवोट एटलीस्ट 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, देन डू द बैकग्राउंड बिल्डिंग. Then try to relate it with the, मतलब 100 वर्ड में पूरी थ्योरी आ गई. थ्योरी, क्रिटिसिज्म सब इसी में खत्म हो गया. तो 100 वर्ड मीन्स हार्डली 1.5 पेज. यू स्टिल हैव 1.5 पेज 15 में. तो देन ट्राई टू स्टैब्लिश a contemporary relevance and then finally a conclusion. Clear? I guess this ends all the questions. Any doubt? Now, will you write it now or exhausted?
So I'll upload these model answers. ये मैं भी upload कर दूंगा. Any other doubt? Fine. Okay then. The next session is on नहीं Friday, Monday, Tuesday. Next is on Tuesday, I guess. 17th. Okay. 17th is Tuesday. Next would be Locke, Mill, Marx, Gramsci, and Arden. We again have 10 questions, and then we would be moving towards ideologies. So I guess those writing means we would be winding it up by first week of June. अच्छा, it also consists of 2 FLTs. इसमें mention नहीं है, 2 FLTs होंगे, and those 2 FLTs would be done. They would be conducted in the month of August. That would be 9th August. 9th August को 2 FLTs हैं इसमें. Same day. Paper 1, Paper 2, they're in the same day. Fine.